So one more term is there, technical term, that is universal. Okay. Okay. These terms will be used again and again. Okay, in Western philosophy, real, okay, then your objective, subjective, universal. Okay, all these are technical terms. So universal can be compared with samanya. Samanya of Nyaya Vaisheshika. What is Samanya of Nyaya Vaisheshika? Anyone? Samanya of Nyaya Vaisheshika. What is Samanya of Nyaya Vaisheshika? बस ऑनलाइन क्लास पे यही एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप क्वेश्चंस पूछते हो, आंसर्स नहीं मिलते हैं, इंटरेक्शन नहीं होता, टू वे इंटरेक्शन is almost impossible. Okay. What do you mean by Samanya of Nyaya? Anyone? Akanksha? Samanya. What is Samanya? Rohit? Pankaj? Okay. 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 First of all, Samanya is a category. Okay. Out of 7 categories, it is one of the categories. And it means universal. Universal or generality. Common and essential feature of a particular class. So that is universal. Okay, that is universal. You will get one question on Samanya, short one. Okay, common and essential feature of a class. For example, cowness. So whenever we will use words universal, it means common and essential feature of a particular class. For example, cowness, manness. Okay. So these are some technical terms which will be used again and again when we will proceed in Western philosophy. Okay. Now one more thing. Okay. That is realism and idealism. Okay. आपको पता है लेकिन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं रियलिज्म और आइडियलिज्म ताकि आप कंफ्यूज ना हो. ठीक है, अब आप समझिए. रियलिज्म में ऐसा है, मान लो यू आर हियर and any object is there. Any object, it can be any object. It can be board, it can be chair, it can be screen of my laptop. Okay, anything can be there. So under realism, both these objects are separate, different, and independent. So you have to remember this technical term HDI. Under realism, knower is one who finds knowledge. Knowable is one regarding whom we find knowledge. Knower is one who finds knowledge, ज्ञाता. Okay. जिसको नॉलेज मिलती है वो आपका नोवर होता है, और जो जिसके बारे में नॉलेज मिलती है उसे हम कहते हैं क्या, नोएबल, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज. ओके. फॉर एग्जांपल अभी आपको आपकी स्क्रीन की नॉलेज मिल रही है, तो यू आर द नोअर एंड दिस स्क्रीन और व्हाटएवर नॉलेज यू आर गेटिंग दैट इज नोएबल. ठीक है. सो नोअर ऑलवेज फाइंड्स द नॉलेज ऑफ नोएबल. ओके.
Now the thing that is important for us is what is the relation between knower and knowable. So on the basis of relation between knower and knowable, there are two theories. One is realism. रियलिज्म के हिसाब से नोवर और नोएबल दोनों सेपरेट, डिफरेंट और इंडिपेंडेंट होते हैं. तो मोस्ट ऑफ द फिलोसफर्स आर रियलिस्ट. मोस्ट means you can say 90% philosophers are realist, but there are some philosophers around 10% who are idealist. Idealism means this is your knower and this is your knowable. Anything can be their object. कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, बोर्ड हो सकता है, सर्कल हो सकता है, चेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. Here, according to idealist, the knower and knowable are not separate. Basically, this knowable is dependent on knower. अगर एक लाइन में समझाऊं तो ऐसे समझो कि मेरे सामने कुछ भी दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरे माइंड ने आइडियाज इम्पोज किए. My mind has imposed ideas. So everything which has existence in this world, according to idealist, is projection of my mind. जैसे इनका कहना है, जैसे आप रोप की जगह स्नेक दिखता है ना आपको रोप पर, तो अगर रियलिस्ट होगा तो रियलिस्ट के हिसाब से तो रोप की जगह रोप दिखना चाहिए. लेकिन अगर आपको रोप की जगह स्नेक दिख रहा है तो ये इनका यही मानना है कि मुझे स्नेक इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरे माइंड ने स्नेक के आइडियाज इम्पोज किए. तो इनका कहना है कि चेयर, मुझे चेयर दिखाई दे रही है क्योंकि मेरे माइंड ने चेयर के आइडियाज इम्पोज किए. एप्पल, मुझे एप्पल दिखाई दे रहा है, हो सकता है एप्पल पे मेरा माइंड अगर ऑरेंज के आइडियाज इम्पोज कर दे तो एप्पल की जगह मुझे ऑरेंज दिखाई दे. तो रियलिस्ट का जो मानना है, रियलिस्ट का मानना क्या है, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे मैं समझाता हूँ उसको. हम सब रियलिस्ट है, वी ऑल आर रियलिस्ट, अधिकतर हम में से रियलिस्ट है. रियलिस्ट का मानना ये है कि जो जैसा दिख रहा है वो वैसा है. अगर मैं कहीं पे भी जाता हूँ, मार्केट में जाता हूँ, तो जो चीजें मुझे दिख रही है, ऑल ऑब्जेक्ट्स दे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है. मैं ये नहीं कहूंगा कि एप्पल मुझे इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि एप्पल मैंने आइडियाज इम्पोज कर. ठीक है, हम रियलिस्ट है, हम सीधी सीधी बात करते हैं. पानी दिख रहा है तो पानी है, एप्पल दिख रहा है तो एप्पल है, ऑरेंज दिख रही है तो ऑरेंज है. ठीक है, रोड दिख रही है तो रोड है, बोर्ड दिख रहा है तो बोर्ड है. लेकिन जो रियलिस्ट आइडियलिस्ट होता है, उसके हिसाब से आइडियाज, सब कुछ आइडियाज. मुझे एप्पल क्यों दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने एप्पल पे अपने आइडियाज इम्पोज कर दिए. इनका कहना है कि एप्पल आपको डायरेक्ट नहीं दिखता है, पहले क्या दिखेगा आपको, एक राउंडनेस, ठीक है, एक आपको शेप दिखेगा राउंड, ठीक है, फिर आपको दिखेगा, ठीक है, स्वीटनेस, फिर आपको दिखेगा रेडनेस. बोलता है इन सबको जब आपने कंबाइन किया, यू विल गेट एन एप्पल. ठीक है, तब आपको एप्पल दिखाई देता है. अदरवाइज अगर आप इन आइडियाज को सेपरेट कर दो एप्पल से, एप्पल माइनस ऑल दिस आइडियाज, देयर इज नो एप्पल. देखो, हम बेसिकली इतना ज्यादा सोचते नहीं. अब आप फिलोसफी पढ़ रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि रियलिज्म और आइडियलिज्म से कुछ होता है. लेकिन अगर आप देखो तो आइडियलिस्ट भी अपनी जगह पे सही है. क्यों? क्योंकि आप एक मेंटली चैलेंज उसको देख लो. ठीक है, कोई मेंटली चैलेंज है, क्या उसको एप्पल की जगह एप्पल दिखेगा? हो सकता है वो एप्पल को कुछ और समझे या उसको समझ ही नहीं आए. क्यों? क्योंकि उस समय उसका माइंड आइडियाज उसी तरीके से इम्पोज कर रहा है या आइडियाज इम्पोज नहीं कर रहा है. एक जो चाइल्ड है उसको भी क्या एप्पल एप्पल दिखेगा? नहीं, क्योंकि उसके आइडियाज ही नहीं है, तो उसको एप्पल की जगह एप्पल दिखाई नहीं देगा, या एप्पल को कुछ और समझ सकता है. तो आपके जो आइडियलिस्ट है वो ये नहीं कहते कि एप्पल एग्जिस्ट नहीं करता.
देखो वो कभी ये नहीं कहते कि एप्पल एग्जिस्ट नहीं करता, पानी एग्जिस्ट नहीं करता, बोर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट सब करते हैं, एवरीथिंग एग्जिस्ट, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन नोवर। समझ रहे हो आप बात को? इट इज डिपेंडेंट ऑन नोवर। हाउ? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर एप्पल। Now there are three person. One is normal person. Second is mentally challenged person. Third is suppose some children is child is there. Okay. Now for me it's an apple. For this mentally challenged person it can be anything because his ideas are different from mine. And for this child, he does not about the ideas, so for him it is nothing. So basically, apple exists. Apple is there. Apple exists, but the existence of apple is dependent on knower. For him, it is an apple. For him, it is something else. For him, it is nothing. So the existence of apple is dependent on knower. It means your objects exist. According to idealist, objects exist, but their existence is dependent on knower. For example, if you go to Kashmir, you will find very scenic beauty there. अब आप जाते हो तो यू आर ए नॉर्मल पर्सन एंड सपोज आपके साथ कोई एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर जाता है, आपके लिए तो वो नॉर्मल सीनिक ब्यूटी है, बट फॉर हिम और हर इट विल बी डिफरेंट। वो उसको अलग तरीके से देखेगा। क्यों? क्योंकि वो फोटोग्राफर है। तो वो जो चीजें हैं कश्मीर में वो एग्जिस्ट तो कर ही रही है ना, लेकिन इसके हिसाब से नॉर्मल पर्सन के हिसाब से अलग उनका एग्जिस्टेंस है, इसके हिसाब से अलग उसका एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो यानी आइडियलिस्ट ये नहीं कह रहे हैं कि चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन वो किस पे डिपेंडेंट है? वो नोवर पे डिपेंडेंट है। नोवर टू नोवर वो चीज वेरी करती है। लेकिन जो आपका रियलिस्ट है वो क्या बोल रहा है कि अगर एप्पल है तो सबके लिए वो एप्पल है। बोला ये एप्पल का नोवर से कुछ लेना देना नहीं है। एप्पल अलग एग्जिस्ट करता है, नोवर अलग एग्जिस्ट करता है। यानी यहाँ पे नोवर और एप्पल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों सेपरेट एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो आपका आइडियलिस्ट है वो कह रहा है कि सेपरेटली कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन नोवर। और नोवर क्या देखता है? आइडियाज इंपोज करता है, उसी हिसाब से उसको चीजें दिखाई देती है। इज इट क्लियर? क्लियर है ना सबको? इज इट क्लियर और नॉट? आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट प्लेटो। प्लेटो शुरू करते हैं और फर्स्ट फिलोसफर। ठीक है, बाकी टेक्निकल टर्म्स बीच में होती रहेगी आपकी। प्लेटो, एवरीथिंग इज रिटन इन योर नोट्स। आपको मिल गए होंगे, नहीं तो मैं लिंक भेज देता हूँ। ठीक है, वेरी नाइसली रिटन इन योर नोट्स। दो तीन टॉपिक दिए। वाइन, वाइन इज नॉट इन योर नोट्स, स्ट्रॉसन इज नॉट इन योर नोट्स, एंड रसल भी नहीं है, और शायद मूड भी होगा या नहीं होगा पता नहीं, देखना पड़ेगा। ये छोटा सा टॉपिक है, बट यू विल गेट वन क्वेश्चन। ये भी छोटा सा टॉपिक है, वन क्वेश्चन। ये भी छोटा सा वन क्वेश्चन। ठीक है, इन तीनों से आता ही आता है, मूड से बहुत रेयरली आता है। तो इन तीनों के जैसे मैंने श्री अरविंदो के आपको बना के दिए स्लाइड्स, अभी मैं आपको कर देता हूँ, ग्रुप में डाल देता हूँ श्री अरविंदो वाली स्लाइड्स। जैसे श्री अरविंदो वाली स्लाइड्स मैंने बनाई है, इनकी मैं आपको स्लाइड्स बना के दूँ। ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्लेटो देख लेते हैं। तो प्लेटो वगैरह एरिस्टोटल के तो नोट्स में आपके सब कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है। प्लेटो में सिर्फ हमें क्या पढ़ना है? थ्योरी ऑफ आइडियाज। ठीक है, आइडियाज को फॉर्म्स भी बोला जाता है, यूनिवर्सल भी बोला जाता है। ठीक है, तो कहीं पे भी आपका और सब्सटेंस भी बोला जाता है।
So you will definitely get one question from Plato. Okay, Plato is very important. You will definitely get one question, or and 90% chances are there that you will get one question, theory of ideas, short note, 10 marks, or some question linked to some other 15 marks or 20 marks. 10 marks will direct theory of ideas. If 15 or 20 marker will be there, then it will be linked to Aristotle. Okay. So theory of ideas, first topic. Second is recollection theory of knowledge. देखो वैसे टॉपिक तो एक ही पढ़ना है इसमें, ये अगर सिलेबस के हिसाब से, लेकिन ये उसी के पार्ट है। थर्ड जहां से क्वेश्चन आता है, थर्ड इज डिवाइडेड लाइन। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। एंड फोर्थ इज एनालॉजी ऑफ केव। यहाँ से भी 10 मार्क्स। एंड फिफ्थ इज कंपैरिजन विद एरिस्टोटल। ओके, सो these are the broad topics. Okay, इनमें से क्वेश्चन आएगा आपको, या तो थियरी ऑफ आइडियाज पूछ लेगा, या रिकलेक्शन थियरी ऑफ नॉलेज पूछ लेगा 10 मार्क्स में, या आपसे डिवाइडेड लाइन पूछ लेगा, या एनालॉजी ऑफ केव पूछ लेगा। क्वेश्चन जरूर आएगा प्लेटो से। यू विल डेफिनेटली गेट वन क्वेश्चन फ्रॉम प्लेटो। ओके, तो अब प्लेटो हम देख लेते हैं, प्लेटो में बात कहती है। पहली चीज तो सबसे पहले हम देखते हैं सोक्रेटिस। पहले थोड़ा सा प्लेटो का वो देख लेते हैं ब्रीफ, ठीक है। प्लेटो बेसिकली क्या है, आपका रैशनलिस्ट है एक तरह से देखा जाए। रैशनलिस्ट के हिसाब से रीजन इज द ओनली सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। मतलब रैशनलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो मैथमेटिक्स से इंप्रेस होते हैं। ओके, अब प्लेटो, आप प्लेटो अगर आपको समझ आ जाएगा, आपको डेकार्ट वेकार्ट सब समझ आ जाएगा, ठीक है। डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज, सब कंसेप्ट सेम है, सब रैशनलिस्ट है, ठीक है। प्लेटो क्या बोलता है, प्लेटो बोलता है कि प्लेटो का मानना था कि नॉलेज जो होनी चाहिए ना, नॉलेज कैसे होनी चाहिए आपकी, यूनिवर्सल, ऑब्जेक्टिव, इटर्नल, अनचेंजेबल। रोहित कल पूछ रहे थे ना, यूनिवर्सल और ऑब्जेक्टिव दोनों वर्ड एक साथ यूज हुए हैं कल, क्या परसों पूछ रहे थे। अभी आपको क्या क्लासेस चलेंगी रेगुलर, लेकिन ऐसी टाइमिंग्स वगैरह चेंज हो सकती है, क्योंकि मेरा भी ऑफिस होता है, मेरे पास भी काम होते हैं, कभी भी कोई भी काम आ जाता है, लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट करना है तो कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ऑनलाइन में वैसे भी आपको क्या करना है, घर पे जैसे बैठे हो वैसे बैठना, कौन सा नहा धो के तैयार हो गया, आपको बाल वाल बना के ऐसे बन के सज धज के आना। जिस अवस्था में बैठे हो, वीडियो आप ऑन करते नहीं हो, उसी अवस्था में क्लास अटेंड कर लो। तो 7 बजे हो सुबह, या सुबह 6 बजे हो, या रात को 11 बजे हो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा कष्ट आपका हो, थोड़ा सा कष्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली वीडियो का बोलते एक बंदे ने, किसी ने वीडियो ऑन कर दिया, दिल पे ले गया। तो बेसिकली रैशनलिस्ट जो होते हैं, उनके हिसाब से रीजन। अब देखो, प्लेटो चाहता था कि नॉलेज, प्लेटो के हिसाब से नॉलेज कैसे होनी चाहिए, यूनिवर्सल, ऑब्जेक्टिव, इटर्नल और अनचेंजेबल, ठीक है। अब ऐसी नॉलेज आपको कहाँ मिलती है,
मैथमेटिक्स में। अगर आप देखो 2 और 2 क्या होता है 4, ये 4 आपका आज भी 4 है, कल भी 4 था, आपके मरने के बाद भी 4 रहेगा, आपके पैदा होने से पहले भी 4 था। आप मून पे चले जाओ तो भी 2 और 2 4 होगा, आप यूएस चले जाओ तो भी 2 और 2 4 होगा। तो जो मैथमेटिकल नॉलेज होती है या जो रैशनल नॉलेज होती है वो कैसी होती है, यूनिवर्सल, ऑब्जेक्टिव, इटर्नल, अनचेंजेबल। ठीक है। अब मैथमेटिक्स से तो इंस्पायर्ड है, लेकिन क्या मैथमेटिकल नॉलेज हमारी लाइफ को रेगुलेट कर सकती है? नहीं। लाइफ को तो कौन सी नॉलेज रेगुलेट करेगी, जो आप इस वर्ल्ड से आपको मिलती है। 2 और 2 4 आपकी लाइफ में आपका कभी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि 2 और 2 4 से आपकी पूरी लाइफ चल जाएगी। हाँ, कभी कभार मैथमेटिक्स काम आती है जब आप कुछ खरीदने जाते हो, कितना का खरीदा कितना बचा वो ठीक है, लेकिन जो आपकी लाइफ रेगुलेट होती है वो कैसे होती है, इस वर्ल्ड में क्या चीज है। ठीक है, आप वर्ल्ड को किस तरीके से देखते हो, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे रहना है, ठीक है, कौन कौन सी वर्चूज होनी चाहिए। तो प्लेटो का मानना यह था कि नॉलेज आपकी होनी चाहिए कैसी, यूनिवर्सल, ऑब्जेक्टिव, इटर्नल और अनचेंजेबल, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। लेकिन ऐसी नॉलेज हमें मिलेगी कहां से, ऐसी नॉलेज हमें मिलेगी कहां से? ओके, तो ऐसी नॉलेज मिलेगी कहां से, तो इसी बेसिस पे इसने अपनी थ्योरी दी है कि इस नॉलेज के लिए ऐसी नॉलेज हमें मिलती है आइडियाज से। इसी नॉलेज का ग्राउंड क्या है, आइडियाज। इसलिए हमें थियरी ऑफ आइडियाज पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है कि नॉलेज आपकी कैसे होनी चाहिए। प्लेटो वाज अ रैशनलिस्ट फिलोसोफर, अकॉर्डिंग टू हिम रीजन इज द ओनली सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। ओके, एंड द नॉलेज, देखो वैलिड नॉलेज, और नॉलेज कैसी होनी चाहिए आपकी, ये तो देखो नॉलेज, और नॉलेज आपकी कैसे होनी चाहिए, यूनिवर्सल, ऑब्जेक्टिव, इटर्नल, अनचेंजेबल। ओके, तो यूनिवर्सल, ऑब्जेक्टिव, इटर्नल, अनचेंजेबल। लेकिन ऐसी नॉलेज मिलेगी कहां से, तो उसके लिए उसने बोला कि ऐसी नॉलेज हमें सिर्फ कहां से मिल सकती है, आइडियाज। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखो समझो बात। ये प्लेटो है, ये प्लेटो है, और ये प्लेटो की नॉलेज है। और ये नॉलेज कैसे होनी चाहिए, इटर्नल, ऑब्जेक्टिव, यूनिवर्सल, अनचेंजेबल। अब इस नॉलेज का ग्राउंड क्या हो सकता है, ग्राउंड ऑफ सच नॉलेज। तो ग्राउंड ऑफ सच नॉलेज आपका क्या होगा, 2 चीजें प्लेटो ने बोला कि ऐसी नॉलेज का ग्राउंड क्या हो सकता है, क्या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं कि इस वर्ड के ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस वर्ड। लेकिन क्या इस वर्ड के ऑब्जेक्ट्स तो कैसे हैं आपके, चेंजेबल है। ठीक है, इम्परमानेंट है। एसोसिएटेड विद ओरिजिन एंड डिके। तो क्या ऐसा सोर्स हो सकता है, ये नहीं। क्यों, क्योंकि जब नॉलेज ऐसी है तो उसका ग्राउंड भी वैसे होना चाहिए। मैंने आपको कॉज इफेक्ट थ्योरी पढ़ाई है ना, जैसा कॉज होगा, जैसा इफेक्ट होगा, वैसे ही कॉज होना चाहिए। तो सिमिलरिटी होती है ना कॉज और इफेक्ट। तो प्लेटो के हिसाब से ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड नॉलेज का, नॉलेज नहीं बनाते हमारी, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड क्या है, दे आर जस्ट opinions. We can have opinion regarding object of this world. ठीक है, opinion, opinion क्या होती है आपकी, आपकी opinion हमेशा क्या होती है, चेंजेबल होती है। जैसे आपकी opinion मान लो ये है कि बीजेपी इज गुड, तो
तो क्या जिंदगी भर यही रहेगी? नहीं, हो सकता है थोड़े टाइम बाद आपको आप अच्छी लगने लग जाए, थोड़े टाइम बाद आपको हो सकता है कांग्रेस अच्छी लगने लग जाए, या किसी पर्सन के बारे में आपकी ओपिनियन, कभी वो अच्छा लगता है, कभी वो खराब लगता है, कभी वो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ओपिनियन कीप्स ऑन चेंजिंग। तो इस वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स क्या है? ओपिनियन। जैसे कभी आपको क्या है, कभी आपको मीठा पसंद आता है, ठीक है, कभी आपको गुलाब जामुन पसंद होता है, थोड़े दिनों बाद आपको मान लो डायबिटीज हो गई या गुलाब जामुन ज्यादा खा लिया तो गुलाब जामुन आपको पसंद नहीं होता है। तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर ग्राउंड ऑफ ओपिनियन, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स जो है वो उनके रिगार्डिंग हम ओपिनियन बना सकते हैं, सिर्फ नॉलेज नहीं। क्योंकि नॉलेज कैसी होनी चाहिए भाई, जो चेंजेबल ना हो, लेकिन हमारी ओपिनियन तो चेंज होती रहती है। तो फिर ऐसी नॉलेज का ग्राउंड क्या है? ऐसी नॉलेज का ग्राउंड है आइडियाज। तो फिर आइडियाज अगर ग्राउंड है तो वेयर डू आइडियाज एग्जिस्ट? अगर इस वर्ल्ड में करेंगे तो फिर ये भी चेंजेबल हो जाएगा। तो आइडियाज इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते, आइडियाज कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? दैट वर्ल्ड में। दैट वर्ल्ड मीन अदर वर्ल्ड, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। तो अब प्लेटो ने अपनी ग्राउंड ऑफ नॉलेज मानने के लिए दो वर्ल्ड माने, एक तो दिस वर्ल्ड जिसमें हम लोग रहते हैं, और एक दैट वर्ल्ड, दैट इज वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। ओके, यहाँ तक क्लियर है कि प्लेटो ने दो वर्ल्ड माने। क्यों दो वर्ल्ड माने? क्योंकि उसने पहले नॉलेज को कैसा माना? इटर्नल, ऑब्जेक्टिव, यूनिवर्सल, अनचेंजेबल। और ऐसी नॉलेज का ग्राउंड इस वर्ल्ड के आपके ऑब्जेक्ट्स नहीं हो सकते, क्योंकि इस वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सिर्फ आपके अनचेंजेबल होते हैं, इम्परमानेंट होते हैं। तो रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड वी कैन क्रिएट ओनली ओपिनियन। तो वो कभी भी आपका सोर्स नहीं हो सकते, किसका? नॉलेज का। तो नॉलेज का सोर्स कैसा होना चाहिए? नॉलेज जैसा ही। तो वो क्या है? आपके आइडियाज। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो आप, तो आप प्लेटो ने दो वर्ल्ड मान ली, दिस वर्ल्ड एंड दैट। तो दिस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स, क्या हम कहते हैं? पर्टिकुलर। और दैट वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं आइडियाज, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल। तो पर्टिकुलर आपका हो गया जैसे काउ, और यूनिवर्सल हो गया आपका जैसे काउनेस। अब प्लेटो क्या कहता है कि जो ओरिजिनल है वो ये, दिस इज ओरिजिनल, ठीक है। और जैसे काउनेस इज ओरिजिनल, और वर्ल्ड की जितनी भी काउ है, कोई भी काउ वर्ल्ड की, ठीक है, दे आर जस्ट फोटोकॉपी ऑफ काउनेस। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉपी थियरी। तो प्लेटो का मानना ये है कि जो आपके आइडियाज होते हैं वो उस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ब्रह्म नहीं था, ब्रह्म आपका जो था उसकी सब कॉपी थे, मतलब क्या थे? जीवा। जीवा जो थे उसके वही तो थे, रिफ्लेक्शन। ऐसे यहाँ पे काउनेस इज ओरिजिनल। जैसे आप मान लो, ये आपको एक मैं बुक दूं, मान लो जैसे कोई बुक देता हूँ, मान लो मैं आपको फ्रैंक एंड थिलिक,
ठीक है, फिलोसफी की बुक आती है फ्रैंकल, महंगी है थोड़ी। दिस इज ओरिजिनल। अब आप जितने भी लोग हो आप सब इसकी क्या कराते हो, फोटो कॉपी कराते हो। तो ये तो ओरिजिनल है। अब क्या फोटो कॉपी सेम ऐसी आएगी क्या, नहीं। कहीं पे प्रिंट हल्का हो सकता है, कहीं पे डार्क हो सकता है, थोड़ा डार्क हो सकता है। ठीक है, तो कभी भी आपका कवर पेज जो होगा वो अलग होगा। ठीक है, वो आपका बाइंड अलग तरह से बाइंडिंग होगा, आपका फोटो कॉपी अलग तरह से बाइंडिंग होगा। अगर आप इसकी फोटो कॉपी कराओगे तो फोटो कॉपी कभी भी इसके सिमिलर नहीं होगी, कुछ तो चेंज होगा। कौन सा परफेक्ट है, दिस वन इज परफेक्ट, और ये क्या है आपके इम्परफेक्ट। क्यों, क्योंकि परफेक्ट तो वही है जो ओरिजिनल है, बाकी तो सब उसकी कॉपी है। ठीक है, ये कॉपी आपकी सारी मान लो नहीं भी होती, ये कॉपी नहीं भी होती, तो यू विल हैव दिस, okay, original will be there. If copy will not be there, then original will be there. Okay, original will always be there because original is eternal according to Plato. तो आपका कॉपीज खत्म हो जाए बट फ्रैंक थ्योरी जो है आपकी ओरिजिनल रहेगी। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, यहाँ पे तो क्या दोनों इसी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, ये भी और ये भी। ठीक है, इसलिए ये दोनों ही वैसे, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल। सो ओरिजिनल जो एग्जिस्ट करते हैं वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, दैट वर्ल्ड में। वो सारे कहलाते हैं यूनिवर्स आइडियाज, उनको क्या कहते हैं हम, आइडियाज। और आइडियाज को इसने क्या बोला, यूनिवर्सल। ओके, सो बेसिकली आइडियाज आर रियल, काउनेस इज रियल। काउनेस की जो कॉपी है वो है काउ। ऐसी मैननेस, वी आर कॉपी ऑफ मैननेस। अब प्लेटो को क्या मानना है, ये क्यों ओरिजिनल है, समझो बात को। जैसे आपका फॉर एग्जांपल डायनासोर, प्लेटो कहता है डायनासोर इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, डायनासोर किसकी कॉपी थे, डायनासोर ने इसकी। हम सारे डायनासोर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सब में डायनासोर ने ऐसे ना, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। सो बेसिकली प्लेटो को कहना है कि डायनासोर तो खत्म हो गए, लेकिन अभी डायनासोर कुछ कहीं पे भी नहीं है। फिर भी हम डायनासोर का कहीं पे भी अगर देखते हैं, मूवी भी देखते हैं, पिक भी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्यों आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि उसका जो आइडिया है वो आपका इटर्नल है। वो इटर्नल क्यों, क्योंकि वो दैट वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। डायनासोर खत्म हो सकते हैं लेकिन डायनासोरनेस खत्म नहीं होगी। काऊ खत्म हो सकते हैं, काउनेस खत्म नहीं होगी। मैन खत्म हो सकते हैं, मैननेस खत्म नहीं होगी। आज को मान लो आपकी ह्यूमन रेस पूरी खत्म हो जाती है, कल को कोई नई रेस आती है बिल्कुल डिफरेंट, मान लो एलियन टाइप, तो जो वो कभी देखेंगे हमें तो पहचान लेंगे ना कि ऐसे मैननेस। क्यों, क्योंकि बेसिकली मैननेस हमेशा रहेगी। अगर कहीं पे भी देखेंगे बोला हाँ ये ह्यूमन बीइंग ऐसे दिखते हैं, तो हर ह्यूमन बीइंग को आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब आपका डोडो एक बर्ड है, डोडो इज ए बर्ड दैट हैज बिकम एक्सटिंक्ट। ठीक है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन आप उसको देखोगे आप पहचान लोगे। क्यों, क्योंकि डोडो खत्म हुआ है, डोडो नेस्ट है। बाबू खत्म हुआ है लेकिन बाबू नेस्ट तो है। ठीक है? तो बेसिकली ये आपका प्लेटो का कंसेप्ट है कि आपका जो आइडियाज है दे आर इटर्नल। क्यों, आइडियाज एग्जिस्ट क्या करते हैं, दैट वर्ल्ड में। और आपको पता है ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में सारी चीजें क्या होती हैं आपकी, इटर्नल होती है। यहाँ तक क्लियर है। तो आपको ये पूरा कंसेप्ट समझाने का ये मतलब था कि प्लेटो ने दो वर्ल्ड माने। ठीक है, दिस वर्ल्ड एंड दैट वर्ल्ड। सो ये दिस वर्ल्ड जो है ये है इंपेरिकल वर्ल्ड, और दैट वर्ल्ड जो है वो है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज।
तो यहाँ पे आपका क्या काम करता है, एक्सपीरियंस, और दैट वर्ल्ड के लिए आपको क्या चाहिए, रीजन। ओके, तो इस वर्ल्ड को प्लेटो ने लेस इंपोर्टेंस दिया है, क्योंकि उसके लिए तो क्या है, दैट वर्ल्ड इंपोर्टेंट है, और दैट वर्ल्ड को मोर इंपोर्टेंस। यहाँ पे क्या पाई जाती है, फोटोकॉपी। यहाँ पे क्या पाया जाता है, ओरिजिनल। तो प्लेटो के हिसाब से जो मेन जो आपका वर्ल्ड है, दैट इज दिस वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। ओके, तो रियल नॉलेज ये है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, दिस वन इज रियल नॉलेज। ठीक है, अब समझो इसको आगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि उसने किसको इंपोर्टेंस ज्यादा दी है, दैट वर्ल्ड को। ठीक है, अब इसने क्या किया है, इस दैट वर्ल्ड और दिस वर्ल्ड को समझाने के लिए एक एनालॉजी दी, जैसे कहते हैं एनालॉजी ऑफ केव। किसको समझाने के लिए, दिस वर्ल्ड और दैट वर्ल्ड को। एक तो एनालॉजी ऑफ केव दी है, और दूसरा दिया है थ्योरी ऑफ डिवाइडेड लाइन। ये दोनों उसने क्या समझाने के लिए किया है, ये दोनों में फर्क समझाने के लिए उसने दो छोड़े। तो पहले देखते हैं एनालॉजी ऑफ केव क्या है। ठीक है, अभी मैं ब्रीफ दे रहा हूँ, अभी वापस में अभी चलता रहेगा प्लेटो, एरिस्टोटल भी इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, आपके नोट्स में ये सब लिखा है। ठीक है, आप समझो, सिर्फ प्लेटो को समझने वाली बात है। आप ये जो मैं स्क्रीन ये लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप ये भी इसके स्क्रीनशॉट ले लो, इससे भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो बेसिकली प्लेटो क्या बोलता है कि एनालॉजी ऑफ केव देखते हैं। बढ़िया थियरी है। जैसे होता नहीं है कि आपने एक शब्द सुना होगा, कुएं का मेंढक। एक तो हिंदी लिखने की आदत है। कुएं का मेंढक का मतलब होता है वेरी कंसाइंड। जैसे मान लो मैं बोलूं बीजेपी इज द बेस्ट पार्टी, बेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। आप पूछो क्यों, मैं बोलूंगा है बस, दैट इज कुएं का मेंढक। मतलब है बस, है, पता नहीं है क्यों है बस। कुछ भी चीज है बस, आपको पता नहीं है, आप उसके बारे में कोई आर्गुमेंट नहीं करना चाहते, ना आप सुनना चाहते, वो होता है कुएं का। जो मतलब जो मान के बैठा है नॉलेज की ये सही है, हाँ यही सही है, बाकी सब। जैसे मान लो आपके जम्मू में आज भी ऑर्थोडॉक्सी बहुत ज्यादा है। लोग आपके जो, चलो आप तो यंग हो तो आप तो थोड़े से, लेकिन आपके पेरेंट्स जो है वो बोलेंगे इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी। आप बोलोगे क्यों नहीं करनी, बोला नहीं करनी तो नहीं करनी, मतलब कोई रीजन नहीं है क्यों नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेसिकली उनकी थॉट जो है ना वो एकदम कन्फाइंड हो चुके कुएं के मेंढक। अब वो क्यों कुएं के मेंढक है, क्योंकि उनके जो होंगे उनके पेरेंट्स होंगे, उन्होंने तो उनको ये सिखाया होगा। उन्होंने आगे जाके कभी इस पर रिसर्च ही नहीं की कि क्यों नहीं करनी, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो कुएं का मेंढक मतलब जो एक नॉलेज लेके बैठा है और वो उसी नॉलेज को लेके बैठा है, वो आगे कुछ सुनना नहीं चाहता। तो एनालॉजी ऑफ केव भी वही बताती है। प्लेटो का कहना है कि हम सिर्फ इस वर्ल्ड को रियल मान रहे हैं जिसमें हम रह रहे हैं। बोला ये वर्ल्ड रियल नहीं है, दिस इज लाइक ये कुएं का मेंढक, वी आर जस्ट लाइक कुएं का मेंढक। ठीक है, हमें क्या है, दैट वर्ल्ड की नॉलेज चाहिए। तो दैट वर्ल्ड की नॉलेज जिसे मिलेगी वही बेसिकली क्या होगा, मेन वही क्या कहलाएगा आपका फिलोसफर या फिर लिबरेटेड।
या वर्चुअस। ठीक है, तो अब एनालॉजी ऑफ केव में क्या बोलता है ये बोलता है कि मान लो एक केव है, ठीक है, देयर इज सम केव, यहाँ पे एक केव है, सपोज एक केव इज देयर, यहाँ पे कुछ देयर आर सम सर्टेन पीपल, ऐसे करके। अब ये क्या है, इनको है ना आपने क्या करा है, चेन में बांधा हुआ है, दे आर कन्फाइंड फ्रॉम चेन्स, इस तरीके से बांधा हुआ है कि वो सिर्फ आगे देख सकते हैं, दे कैन सी ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, वो अपनी गर्दन ना पीछे घुमा सकते हैं, ना दाएं देख सकते हैं, ना बाएं देख सकते हैं, और ये बचपन से यहीं पे ही है, जब से पैदा हुआ तब से वो यहीं पे ही है। अब क्या करते हैं, इनके सामने यहाँ पे एक आपका, हम कुछ पिक्चर्स प्रोजेक्ट करते हैं, कोई भी पिक्चर हो सकती है आपकी, मान लो पिकॉक की हो गई, एलिफेंट, ठीक है, वो कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, पीछे फायर से रिफ्लेक्शन के थ्रू, फायर यहाँ पे आग जलाते हैं और आग से अलग अलग तरह के रिफ्लेक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। पहले तो आग से ही होता था, ठीक है, तो आग से अलग अलग शेप, कभी पिकॉक, और उन शेप के साथ कोई भी शेप है आपका पिकॉक का, जब यहाँ पे पिक्चर प्रोजेक्ट हो रही है, कोई भी पिक्चर प्रोजेक्ट हो रही है यहाँ पे, तो साथ में क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इन लोगों को क्या लगता है कि ये जो है, ये पिकॉक है, ये ओरिजिनल है, और ये यही ये साउंड निकालता है। ओके, तो ये जो सामने इनके जो प्रोजेक्ट हो रही हैं, जो पिक्चर, जो इमेजेस हैं, उनको ये रियल मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब वो इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं, साथ में क्या कर रहे हैं, उसके साथ साउंड भी निकाल रहे हैं, तो इनको लग रहा है ये पिकॉक भी रियल है, ये एलिफेंट भी रियल है। तो जो इमेजिनरी चीजें हैं, जो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स, उनको ये क्या मान रहे हैं, रियल मान रहे हैं। ठीक है, जो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स उनको क्या मान रहे हैं, ये रियल मान रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ आप डिस्प्ले कर दो। तो पहले क्या होता था, आपको याद हो, जब हम छोटे थे, जैसे मैं तो, मेरे साथ तो ये हुआ था, पता नहीं आप ज्यादा स्मार्ट होंगे तो आपके साथ नहीं हुआ हो, क्योंकि हम जब बच्चे थे तो हम बच्चे ही थे, जब मूवी आती थी, तो जैसे मान लो शोले, तो शोले में बच्चन साहब मर गए, तब हम छोटे थे, तो अमिताभ बच्चन जब मर गए उसमें, तो भाई मैं बहुत रोया कि यार अमिताभ बच्चन मर गया, बहुत रोया। मैं पिताजी को बोल रहा हूँ कि देखो अमिताभ बच्चन मर गया होता है, पिताजी कह रहा है ये फिल्म है, मैंने कहा मर गया वो तो, अब कहाँ से, फिर दूसरी मैंने मूवी देखी, उसमें वापस से जिंदा होकर आ गया। मैंने कहा क्या मजाक चल रहा है, तब मुझे समझ आया कि भाई ये क्या था, ये तो पिक्चर है ना, पिक्चर में तो हर कुछ सब कुछ सही नहीं है ना, वो मरा तो मतलब वो तो पिक्चर में मरा ना, असलियत में तो नहीं मरा। तो ऐसे ही यहाँ पे इनके हिसाब से ये सारे रियल इनको लग रहा है। ठीक है, जैसे मुझे उस समय लगता था ना कि अमिताभ बच्चन मर गया रियल, तो वो वाली नॉलेज इनको रियल लग रही है सारी। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इसको मैं और दूसरे उस पर स्क्रीन पे ले लेता हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ यहाँ से बेसिकली हो क्या रहा है। यहाँ पे आपका, यहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम इमेजेस, ठीक है, अब इन्हीं इमेजेस को क्या है, वो रियल मान रहे हैं। यहाँ पे जितने भी आपके पीपल आर सिटिंग है, कोई नहीं इमेजेस को क्या मानते हैं, रियल, क्योंकि साथ में हम क्या करते हैं, साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको लग रहा है कि साउंड इन्हीं इमेजेस से आ रही है। अब क्या होता है, एक दिन इनमें से एक कैदी, एक प्रिजनर, वो चेन तोड़ के भाग जाता है। ठीक है, चेन तोड़ी, भाग गया, और वो इस गुफा से बाहर निकल गया, और गुफा से बाहर आके निकल के उसने देखा, पहले तो वो आया तो पहले तो उसकी आंखें ही बंद हो गई, क्योंकि आके उसने सबसे पहले क्या देखा, सनलाइट। आप इतने टाइम से अंधेरे में रहोगे गुफा में,
और अचानक से गुफा में उजाला नहीं था, गुफा में तो अंधेरा ही होगा, नहीं तो उजाला होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो इमेजेस प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है, तो सनलाइट में आप आए तो आपने देखा कि क्या, फिर आपने वहां चलते फिरते लोग देखे। ठीक है, तो आप बोलोगे यार ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं, कि ऐसा कुछ नहीं होता है, वो तो सारी इमेजेस है, रियल पीपल तो ये है। तो जैसे ही आप बाहर आओगे तो आपको क्या मिलेगी, रियल नॉलेज, कि यार अभी तक तो मैं अंधेरे में था, असलियत में तो ये सब है। ठीक है, ऐसा होती है दुनिया, ऐसे होते हैं लोग, ऐसा होता है मोड। अब क्या है, आपको नॉलेज मिल गई, लेकिन आप अगर सोचो कि मैं वापस जाऊं गुफा में और इन लोगों को समझ जाऊं, तो ये कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि ये कुएं के मेंढक हैं। ये वही चीज मान के बैठे जो इन्हें मान गए। तो प्लेटो कहता है कि जो ये केव है, दिस इज लाइक दिस वर्ल्ड। जो आप इस वर्ल्ड में देख रहे हो उसी को आप रियल मान रहे हो, और जो बंदा बाहर आ गया केव से, आउटसाइड केव, वो है आपका वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? क्लियर है एकदम? अच्छी कहानी है ना प्लेटो की। प्लेटो काफी इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, तो प्लेटो का कहना सही है, आपको भी क्या है, अपना दायरा जो है सोच का वो थोड़ा बढ़ाना चाहिए। ठीक है, सोच को है ना, कुछ भी हो, कुछ भी है तो कम से कम सोचो कि ऐसा क्यों है। जैसे आप कुछ भी चीज मानते हो, इवन आप गॉड को भी मानते हो, तो आप सोचो कि मैं क्यों मानता हूँ। देखो, फेथ एंड बिलीफ अपनी जगह पे सही है, गॉड को मानो लेकिन ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए। ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए, फेथ ठीक है, लेकिन ब्लाइंड फेथ क्या है, ब्लाइंड फेथ आपको डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे कई लड़कियां नहीं होती हैं, कुछ लड़कों में ब्लाइंड फेथ कर लेती है, क्या होता है रिजल्ट, आपको पता ही। तो ब्लाइंड फेथ किसी पे नहीं करना है। ठीक है, यू नीड टू बी रैशनल। इफ यू आर रैशनल इन योर लाइफ, यू विल नेवर गेट चीटेड। ओके, यू नीड टू बी रैशनल। ठीक है, कभी आपके साथ चीटिंग नहीं हो सकती इफ यू आर रैशनल। थिंक, थिंक अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, कुछ भी परचेज करना है ऑनलाइन, क्यों परचेज करना है, डू आई नीड दैट थिंग? अगर नहीं चाहिए, जबरदस्ती खरीद रहे हो, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर मनी? बिकॉज कहीं इन्वेस्ट करो, बैंक में डाल दो या फिर कहीं पे इन्वेस्ट करो। अगर आपके पास कपड़े हैं पहनने को, तो आप एक्स्ट्रा कपड़े खरीद के आपके कबड़ में फालतू में वो टेंशन की टेंशन ऊपर से। ठीक है, बेसिकली हर चीज में रैशनैलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो प्लेटो का कहना है कि एनालॉजी ऑफ केव से प्लेटो क्या समझाना चाह रहा है, दिस वर्ल्ड एंड दैट वर्ल्ड का डिफरेंस। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है ना? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब प्लेटो ने बोल तो दिया कि भाई ये वर्ल्ड है इंपेरिकल वर्ल्ड। हाँ, एनालॉजी ऑफ केव इज क्लियर। अब डिवाइडेड लाइन में देख लेते हैं। ठीक है, पहले थियरी ऑफ डिवाइडेड। थियरी ऑफ डिवाइडेड लाइन में क्या है, प्लेटो ने नॉलेज को चार पार्ट में डिवाइड किया। ओके, ये ध्यान रखना, ये ना बढ़ते हुए उसमें है, मतलब सबसे कम विड्थ इसकी
इससे ज्यादा विड्थ इसकी होगी, फिर इससे ज्यादा इसकी, और सबसे ज्यादा इसकी। ठीक है, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो इसको, जैसे हम दे देते हैं इसको नाम ए बी सी डी ई, आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपने घर से, ए एल एम एन 1 2 3 4, ठीक है, वट एवर यू लाइक। ये ई है, ये आपके बीच में एक लाइन है, ये बड़ी लाइन। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये कहलाता है आपका वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। और नीचे वाला आपका कहलाता है ये इंपेरिकल वर्ल्ड। प्लेटो कहता है कि आप सबसे लोअर लेवल पे होती है इल्यूजनरी नॉलेज आपकी। ठीक है, उसने दो चीजों में डिवाइड क्यों किया, क्योंकि रियल नॉलेज आपको ऊपर जाके मिलेगी वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। तो सबसे पहले उसने बोला कि सबसे नीचे होती है इल्यूजनरी नॉलेज, उसके ऊपर आती है आपकी इंपेरिकल नॉलेज, उसके आती है मैथमेटिकल नॉलेज, आप जब क्रॉस कर गए डिवाइडेड लाइन में, और सबसे ऊपर आती है नॉलेज ऑफ आइडियाज। ठीक है, और यही आपकी रियल नॉलेज है, इसलिए रियल। ये नॉलेज भी आपकी ठीक है क्योंकि ये भी रैशनल नॉलेज है, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट नॉलेज है वो है नॉलेज ऑफ आइडिया। तो प्लेटो का कहना है कि हम नॉलेज को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ डिवाइडेड लाइन क्या बोलती है कि जैसे जैसे आप इस लाइन पर मूव होते जाते हो, वैसे वैसे आप रियल नॉलेज की तरफ चलते जाते हो। ठीक है, क्योंकि सबसे नीचे जो ये है रिगार्डिंग दिस वर्ल्ड, ये रियल नॉलेज नहीं है। ये वर्ल्ड कैसा है आपका, इसके रिगार्डिंग हम सिर्फ ओपिनियन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज कैसी होनी चाहिए हमारी, अनचेंजेबल, इटर्नल, तो वो हमें मिलेगी सिर्फ वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में जाके। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जैसे आपका एनालॉजी ऑफ केव में क्या है, ये पर्सन जो केव में बैठे थे वो सिर्फ इसको इल्यूजनरी नॉलेज को रियल मान रहे थे। ठीक है, या फिर जो इवन इंपेरिकल नॉलेज है उसको भी रियल मान रहे हैं, वो सारे क्या है आपके, वो सारे इग्नोरेंट है। जो रियल नॉलेज है वो रियल नॉलेज क्या है, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज की। तो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज की नॉलेज जो है जिसको मिल गई वो क्या कहलाता है, फिलोसफर। ओके, तो बेसिकली अब इसको आगे देखते हैं। तो थियरी ऑफ डिवाइडेड लाइन में उसका कहने का मतलब है कि ये नॉलेज आपकी अलग अलग नहीं है। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है कोई, जैसे मान लो अभी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी ले लो, बीजेपी आप, ठीक है, तो ए पॉलिटिकल पार्टी है। अब इसके रिगार्डिंग चार पर्सन है, पॉलिटिकल पार्टी एक ही है, इसकी जो नॉलेज होगी हो सकता है इल्यूजनरी हो, इसकी जो नॉलेज होगी इंपेरिकल हो, इसकी जो नॉलेज हो वो रैशनल हो, इसकी जो नॉलेज हो वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज की तरह। यानी एक ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग, या जैसे इंटरकास्ट मैरिज है या रिलीजन, तो रिलीजन के रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट एक ही है, नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट एक ही है, लेकिन आपकी नॉलेज कैसे हो सकती है, इल्यूजनरी हो सकती है, आपकी नॉलेज इंपेरिकल हो सकती है, आपकी नॉलेज मैथमेटिकल टाइप हो सकती है, आपकी नॉलेज नॉलेज ऑफ आइडियाज। तो प्लेटो कह रहा है कि यहाँ पे जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग नहीं हो है, ऑब्जेक्ट तो एक ही है, कोई भी एक चीज है, इंटरकास्ट मैरिज हो गई, पॉलिटिकल पार्टी हो गई, रिलीजन हो गई, उसको देखने के चार नजरिए हो सकते हैं। अगर आप इल्यूजनरी हो मतलब आप अपने हिसाब से सोच रहे हो, आप एम्पेरिकल हो तो आप जमाने के हिसाब से सोच रहे हो, आप उसके थोड़े ऊपर उठ के आ गए, आपने अपने दिमाग लगाया तो उस हिसाब से सोच रहे हो। और जब आप रियलिटी में सोच रहे हो, आपका दायरा बड़ा है, आप सारी चीजों को कवर कर रहे हो, एनालिटिकल सोच रहे हो, रैशनली सोच रहे हो,
तब आप नॉलेज ऑफ आइडियाज में पहुंचे, तब आप यू विल बी जस्ट लाइक ए फिलोसफर। तो बेसिकली हर चीज को देखने के चार तरीके हो सकते हैं प्लेटो के हिसाब से। यहाँ पे चार अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही चीज को देखने के चार नजरिए होता है ना। एक ही चीज को आप अलग तरीके से देखते हो, मैं अलग तरीके से देखता हूँ। आपका हो सकता है आपका बायस्ड थॉट हो, मेरा हो सकता है रैशनल थॉट हो, किसी और का मेरे से भी रैशनल थॉट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए, दूसरा बोलता है इंटर रिलीजन भी होनी चाहिए। तो बेसिकली हर किसी का अपना अपना थॉट होता है। तो प्लेटो कह रहा है कि एक ही चीज को देखने के चार तरीके हैं। ये चार अलग अलग ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट को चार तरीके से देख रहे हैं। तो इसको चार लेवल में उसने नॉलेज को डिवाइड किया है। तो जो आपकी लोअर नॉलेज है वो है एम्पेरिकल वर्ल्ड वाली नॉलेज, जिसमें इल्यूजनरी फिर एम्पेरिकल नॉलेज। और जो रियल नॉलेज है वो आपकी किससे मिलती है, रीजन के थ्रू, रैशनैलिटी के थ्रू। तो वो कौन सी आपकी थियरी ऑफ वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, और नॉलेज किसकी मिलती है, नॉलेज ऑफ आइडियाज। इज इट क्लियर? आपको क्लियर है? डिवाइडेड लाइन का मतलब दो, उसने कुछ नहीं है, दो लेवल बनाए। एक आपका ये देखो, उसने दो लेवल बनाए हैं, बस कुछ नहीं है। जैसे आपका माइंड और सुपर माइंड में हमने देखा था श्री अरविंदो में, दो लेवल बनाए, और इसमें भी उसने दो लेवल बना दिया, 1 2, और यहाँ पे भी 1 2। तो सबसे ये आपका इंपेरिकल वर्ल्ड, और ये आपका वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। ये नॉलेज आपकी रियल नॉलेज नहीं है। ये कैसी नॉलेज है आपकी, ठीक है, ओपिनियन है ये सब। और ये आपकी नॉलेज। तो ओपिनियन से नॉलेज में जाने के लिए आपको किसकी जरूरत है, रीजन की। उसके लिए, रीजन के लिए आपका रैशनैलिटी की, और रैशनैलिटी के लिए आपका माइंड खुला होना चाहिए। ओके। तो बेसिकली प्लेटो के लिए जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, दैट इज रियल। और वर्ल्ड ऑफ आइडियाज की नॉलेज हमें कैसे मिलती है, थ्रू रीजन। इज इट क्लियर? वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। नाउ वन मोर थिंग, फिर उसके बाद क्लास वाइंड अप करते हैं। लास्ट टॉपिक, दैट इज रिकलेक्शन थियरी ऑफ नॉलेज। ठीक है, रिकलेक्शन थियरी ऑफ नॉलेज। एक टॉपिक रह जाएगा तीनों में कंपैरिजन, वो कल कर लेंगे। कल तो, कल क्लास, हाँ कल क्लास लेंगे। आज तो हो गई, शाम को तो लेने की जरूरत। अब आप सोचो कि भाई मैं यहाँ एग्जिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैन हो सकता है, व्यूमैन हो सकता है, लड़कियां बुरा मान जाएगी, मैन व्यूमैन भी नहीं लिखते हैं, फिर भी लड़कियां बुरा मान जाएगी, बॉयज थे, या ये कर रहा है, हम जेंडर न्यूट्रल लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एक एस्पिरेंट। ये दिस वर्ल्ड है, और यहाँ पे दैट वर्ल्ड है, यहाँ पे आइडियाज आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब आप बोल रहे हो कि आइडियाज की नॉलेज आपको, ठीक है, आइडियाज की नॉलेज ही रियल नॉलेज है ना। तो यहाँ पे आइडियाज आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, काउनेस, मैननेस, जो भी दुनिया की सारी नॉलेज है, फिलोसफीनेस, इकोनॉमीनेस, वैसे का ऑप्शनल है, एंथ्रोपोलॉजीनेस। एंथ्रोपोलॉजी खत्म हो जाएगी, एंथ्रोपोलॉजीनेस, यानी सारे आइडियाज का एग्जिस्ट कर रहे हैं दैट वर्ल्ड। अब यहाँ पे आपका हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे आपका ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट कर रहा है कोई। अब आपको इन आइडियाज की नॉलेज मिलती कैसे, हाउ यू फाइंड द नॉलेज ऑफ दोस आइडियाज। क्यों? आप तो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हो, आइडियाज उस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जब आपको आइडियाज की नॉलेज ही नहीं मिल सकती, तो आपको कैसे आप कह सकते हो कि आइडियाज की नॉलेज ही रियल नॉलेज। नॉलेज मिलनी भी तो चाहिए। तो आइडियाज तो आपके उस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और आप इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन हाउ विल यू फाइंड द नॉलेज ऑफ आइडियाज। तो इसी के रिगार्डिंग समझ रहे हो ना आप बात को, दिस वर्ल्ड में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर, मतलब यहाँ पे कौन एग्जिस्ट कर रहा है, पर्टिकुलर मैन, ठीक है, काउ। और यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिवर्सल, काउनेस, मैननेस, ठीक है। और यूनिवर्सल का मतलब आइडियाज। जैसे मान लो ये दो रूम है, रूम 1, रूम 2। रूम 1 में मैं बैठा हूँ,
बीच में दीवार है और रूम 2 में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी बैठा है, कुछ भी ऑब्जेक्ट है, हाउ विल आई फाइंड द नॉलेज ऑफ रूम 2? दोनों के बीच में दीवार है भाई, कैसे मुझे नॉलेज मिलेगी रूम? तो प्लेटो से यही पूछा गया भाई, क्या कैसे नॉलेज मिलेगी आइडिया की? तो प्लेटो ने उसी के लिए दिए रिकलेक्शन थ्योरी ऑफ नॉलेज, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, रिकलेक्शन थ्योरी ऑफ नॉलेज। इसको थियरी ऑफ रेमिनिसेंस भी बोलते हैं। अब समझो क्या है, ठीक है, ये ले लो स्क्रीनशॉट, समझो। प्लेटो कहता है कि ये है आपकी दैट वर्ड, दैट, ओके, दैट वर्ल्ड में ये आपके सारे आइडियाज हैं। बोलता है आइडियाज के साथ साथ सोल भी वहीं पे एग्जिस्ट करती है, सोल भी तो इटर्नल है। बोला जितनी भी सोल है आपकी, मेरी, सबकी, वो वहीं एग्जिस्ट करती है। बोला आइडियाज भी इटर्नल है, सोल भी तो इटर्नल है। बोला सारी इटर्नल चीजें कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? दैट वर्ल्ड। अब मान लो ये सारी एक ही जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है? जैसे मान लो ये आपका एक रूम है, और इसमें दो लोग बैठे हैं, दोनों को एक दूसरे की नॉलेज होगी ना, एक साथ बैठे, तो यहाँ पे ये सारे आइडियाज के साथ सोल एग्जिस्ट करते हैं। तो सोल को पहले से ही सारे आइडियाज की नॉलेज होती है, सोल को सारे आइडियाज की नॉलेज पहले से ही होती है। फिर क्या होता है, जब हमारा बर्थ होता है तो सोल क्या होती है, किससे कंबाइन होती है? बॉडी से, ठीक है? बॉडी से कंबाइन होके इस वर्ल्ड में आप आ गए। तो जब सोल बॉडी के साथ कंबाइन होती है, तो जो उसकी नॉलेज होती है जैसे इस वर्ल्ड में आती है, वो नॉलेज क्या हो जाती है? उसके डिल, धुंधली हो जाती है, ठीक है? अब क्या होता है, नॉलेज तो पहले से थी, ठीक है? जैसे अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा इसके बाद। जैसे अभी आप फिलोसफी, अभी दे देता हूँ, फिलोसफी पढ़ रहे हो, आप पढ़ के और बुक्स को बंद कर दो, ठीक है? लेकिन जब आप बुक्स खोलोगे, अभी आप बिना बुक्स खोले आपको कुछ याद नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप बुक्स खोलोगे तो आपको जो जो चीजें बताइए वो जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको याद आता जाएगा कि हाँ। ऐसे ही जब आप मेंस का पेपर लिखोगे, जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे, तो क्वेश्चन देख के आपको याद आता जाएगा कि हाँ, ऐसा ऐसा कुछ सर ने बोला था, या ऐसा ऐसा मैंने पढ़ा था। जब तक आप क्वेश्चन नहीं देखोगे आपको समझ नहीं आएगा, तो इसलिए तो कहते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। जैसे कई बार मान लो आपका एक कोई फ्रेंड है, उससे आप मान लो आज से 10 साल पहले मिले थे, वो 10 साल बाद आपको मिलेगा, तो आप उसको देख के मतलब आपको उसकी यादें तो धुंधली हो गई, चेहरा भी धुंधला हो गया, लेकिन जब वो आपके सामने आएगा तो आप रिकलेक्ट करोगे कि हाँ यार ये ऐसा दिखता, तो आप बोलोगे हाँ, आर यू द सेम पर्सन? क्यों? क्योंकि आप जब तक उससे मिले नहीं तब तक तो वो धुंधली है, लेकिन जैसे ही आप उससे मिले तो वापस से आपने रिकलेक्ट कर लिया। तो बेसिकली सोल क्या है, सोल में आइडियाज तो सारे थे, पहले से नॉलेज थी, लेकिन जैसे बॉडी के साथ उसका कॉम्बिनेशन हुआ, वो नॉलेज डिम हो गई। लेकिन प्लेटो के हिसाब से जैसे जैसे हम उस चीज को एक्सपीरियंस करते जाएंगे, जब मैंने आपको बताया ना वो पर्सन वापस से आपको दिखे, तो जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस करते जाएंगे वो आपकी रिकलेक्ट होती जाएगी। तो प्लेटो का मानना ये है कि भाई आइडियाज जो होते हैं वो आपके इटर्नल होते हैं, सोल भी इटर्नल होती है, सोल को पहले से सारे आइडियाज की नॉलेज है, और सोल जब बॉडी के साथ कंबाइन होती है तो नॉलेज डिम हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस करते जाते हैं चीजों को, हमें वो नॉलेज मिलती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, केस ऑफ अभिमन्यु।
महाभारत में क्या हुआ था? ठीक है, जब चक्र भी तोड़ना था, ठीक है, जब चक्र भी तोड़ना था तो किसी को नहीं आता था चक्र भी तोड़ना, तो अभिमन्यु ने क्या बोला कि मैं तोड़ सकता हूँ। ठीक है, 7 सर्कल थे उसमें चक्र में। तो वो बच्चा था अभिमन्यु, तो उसको कोई भेजना नहीं चाहता था, तो उन्होंने बोला कि तुम हमें बता दो कि कैसे तोड़ना है। तो अभिमन्यु ने बोला मुझे पता नहीं है कैसे तोड़ना है, मतलब मैं बता नहीं सकता, लेकिन जैसे जैसे मैं एंटर करता जाऊंगा मुझे याद आता जाएगा, क्योंकि जब मेरे पापा बता रहे थे मम्मी को तो मैंने सुना था। ठीक है, तो बेसिकली तोड़ते वक्त तो सुना था, लेकिन उसके बाद नींद आ गई मम्मी को, तो फिर उसके बाद मैं कैसे बाहर निकलना है वो सुन नहीं पाया। तो बोला लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन जैसे जैसे मैं एंटर करता जाऊंगा मुझे पता चलता जाएगा कैसे तो। क्यों? क्योंकि वो जैसे जैसे देखते जाएगा वैसे वैसे रिकलेक्ट करता जाएगा। जैसे कई बार आपके साथ भी होता होगा, आपको कहीं जाना है, आपको रास्ता याद नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप सड़क पे जाते जाते हो अपने आप आपकी गाड़ी घूमती जाती है एंड यू रीच टू डेस्टिनेशन। क्यों? क्योंकि एटमोस्फेयर ऐसा क्रिएट होता है कि आप उस एक्सपीरियंस से क्या है रिकलेक्ट करते जाते हो चीजों को। ठीक है, तो बेसिकली प्लेटो का ये कहना है कि भाई नॉलेज हमको सारी है, बचपन से हमको सारी नॉलेज है। क्यों बचपन से सारी नॉलेज है? क्योंकि सोल को सारी नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज क्या है आपकी डिम हो गई है। उस नॉलेज को वापस से रिकलेक्ट करने के लिए वैसा एटमोस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको बोलूं कि आप सब भक्ति में झूमने लग जाओ, नॉट पॉसिबल। लेकिन अभी मैं एक एटमोस्फेयर क्रिएट कर दूं, अगरबत्ती जला दूं, गाने चला दूं थोड़े से भक्ति वाले, तो आपकी भी सोल में थोड़ी सी भक्ति आ जाएगी। या अभी मैं म्यूजिक चला दूं डांस करने वाला, तो जो डांस नहीं करते उनके भी पैर थिरकने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि एटमोस्फेयर जैसा क्रिएट होता है वैसे हमारी नॉलेज रिकलेक्ट होती जाती है। तो प्लेटो का कहना है कि आपको सारी फिलोसफी की भी नॉलेज है, आपको सारी साइकोलॉजी भी आती है, आपको एंथ्रोपोलॉजी भी आती है, आपको सब कुछ आता है, क्योंकि सोल को सारे आइडियाज पहले से पता है। और इसलिए सोल सिर्फ क्या करती है, उनको रिकलेक्ट करती है। जैसा जैसा एटमोस्फेयर क्रिएट होता जाएगा वैसे वैसे वो चीजों को रिकलेक्ट करती जाएगी। ठीक है, जैसे अभिमन्यु वाला केस। अब समझो आगे बात को, लास्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग। लास्ट बात क्या है? सोल क्या करती है? चीजों को रिकलेक्ट करती है। तो प्लेटो का मानना है, क्या मानना है, कि वी ऑल हैव इक्वल नॉलेज। वी ऑल हैव इक्वल नॉलेज। अब देखो, प्लेटो, सोक्रेटिस, इनका मानना दोनों का यही था कि हमको सारी नॉलेज होती है। तो ये क्या करते थे, ये लोगों को पढ़ाते ऐसे नहीं थे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या करते थे, ये लोगों को डायलॉग फॉर्म में पढ़ाते थे। डायलॉग फॉर्म में कैसा एटमोस्फेयर क्रिएट करते थे कि मैं कुछ पूछूंगा और आप रिकलेक्ट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो ये डायलॉग फॉर्म में पढ़ाते थे, उसको कहते हैं हम डायलैक्टिकल मेथड। ये डायलॉग फॉर्म में पढ़ाते थे, जैसे ये आपका कोई पर्सन है, उससे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेंगे वो आंसर देगा, फिर ये क्वेश्चन पूछेंगे वो आंसर देगा, ये क्वेश्चन पूछेंगे फिर आंसर, मतलब ये उसके अंदर से आंसर्स निकलवाते थे, क्योंकि इनका मानना था कि इसको सारी नॉलेज पहले से। तो इन्होंने क्या किया था, प्लेटो ने एक खुद का डिसाइपल बुलाया, खुद का स्टूडेंट, और एक स्लेव। उस समय स्लेवरी थी, अब तो नहीं है। और इन दोनों से सेम क्वेश्चन पूछा, दी आंसर वो सेम, इसने भी सेम आंसर दिया, इसने भी सेम आंसर दिया। तो प्लेटो ने बताया कि देखो, इसको भी इक्वल नॉलेज है, इसको भी इक्वल नॉलेज है, बस हमें सिर्फ क्या करना है, एक एटमोस्फेयर क्रिएट करना है। अब जैसे आप अभी कोचिंग कर पा रहे हो, अफोर्ड,
तो अगर ऐसा नहीं है, कोई ऐसा भी हो सकता है जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहा, और जो बेचारा मान लो कोई डेली लेबरर हो, कई होते हैं जिन्होंने मान लो ग्रेजुएशन करके बीए करके वगैरह करके जॉब नहीं मिल रही हो, ठीक है, या फिर घर की मजबूरी हो, उसको अगर यह एटमोस्फेयर दिया जाए, यहाँ फिलोसफी पढ़ाई जाए, तो वो भी आपका केस बन जाएगी। तो प्लेटो का कहना है कि ऑल ऑफ अस हैव इक्वल नॉलेज, द थिंग मैटर इज how to recollect that knowledge, and we can recollect that knowledge by creating such an atmosphere. जैसे आपको ने एग्जांपल दिया अभिमन्यु, मंदिर वाला एग्जांपल दिया, डिस्क वाला एग्जांपल दिया, जैसा आपको एटमोस्फेयर मिलेगा वैसे आपके अंदर का, ठीक है, आदमी बाहर आता है। ओके, अगर 4 आदमी आपके ट्रैकिंग पे गए, 4 ट्रैकिंग कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं उस पे पहाड़ पे, तो आप भी उनको देख के एटमोस्फेयर ऐसा क्रिएट हो गया, माहौल ऐसा बन गया, आपका मन नहीं है तो भी आप चढ़ने लग जाओगे, और फिर आप चढ़ भी जाओगे। तो बेसिकली इट इज ऑल अबाउट रिकलेक्टिंग दी नॉलेज। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? ओके, सो आज के लिए इतना ही, ठीक है, कल लेते हैं फिर क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच, हो जाओ बंद।